सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ मैं सार्थक ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਸਿਵਲਸ ਵਿਦ ਆਕਾਸ਼ ਚਾਣक्य IAS ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ। So as you all know, we have started this lecture series on ethics, which is very much relevant for the upcoming exam of Punjab PCS mains। ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ as per the official notification, and I hope you are preparing very well for that particular exam, right? And for that only we have started this lecture series. A lot of lectures have already been covered under this particular lecture series, and this is in continuation of that, and the topic of the day is right to information। Today we will be seeing ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ RTI ਐਕਟ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਲ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਕਵਰਡ ਇਨ ਟੂਡੇਜ਼ ਲੈਕਚਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਡੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਲੈਟ ਸਟਾਰਟ। ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨਸ ਬ੍ਰੇਨ ਬਾਕਸ। See, चाणक्य IAS अकेडमी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ मेंस ब्रेन बॉक्स, which include two things. One is the printed textbooks. You will be getting these booklets covering the complete syllabus of PCS mains as well as the test series, the important aspect. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, booklets plus test series, and both at a very affordable price of just rupees 8,000। ਜੇ ਕੱਲੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 5,000 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅਪ ਟੂ ਯੂ, ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਵਿਸ਼। ਬੋਥ ਆਰ ਵੈਰੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਥੋਰੋਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ। ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਵਿਸ਼ ਟੂ ਗੋ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਫॉर ਇਟ, ਰਾਈਟ। ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਰਿਪੀਟ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨਾਓ ਲੈਟਸ स्टार्ट आवर टॉपिक। कल, ठीक है, यस, just a second, yes, आज का अपना टॉपिक है राइट टू इंफॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये गवर्नेंस के अंदर एज सच आपके GS2 में वहाँ पे भी काम आता है, तो काफ़ी रेलिवेंट टॉपिक है। इट कैन बी यूज एट मल्टीपल प्लेसेस, राइट। सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड ARC, ठीक है, राइट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो था, सेकेंड ARC ने इसको क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू इट इज़ द मोस्ट पावरफुल लेजिस्लेशन, ठीक है, मोस्ट पावरफुल लेजिस्लेशन since independence, most powerful legislation since independence. This has been called by second ARC, right? There is a reason behind it, ठीक है। अभी देखना है वो सारा इंपॉर्टेंस देखेंगे, समझ आएगा। बट जब सेकेंड ARC ने इतनी बड़ी बात बोल दी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना ये। यस, और भी क्या बोला सेकेंड ARC ने? सेकेंड ARC ने कहा है कि इट इज़ द की फॉर द लॉक ऑफ गुड गवर्नेंस, फॉर द लॉक ऑन गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस के ताले की चाबी है ये, राइट। It has been able to make government more accountable, transparent, ठीक है, responsible and efficient. It has been able to make government more responsible, right, transparent and accountable। यस और नो, राइट। ये सब सेकेंड ARC ने बोला है, ठीक है। और ये हमें सबको इनफैक्ट RTI की पावर का पता भी है। ट्रांसपेरेंसी पे हमने इतनी बात करी है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग पे हमने इतनी बात करी है। सो वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी एज वाई, बिकॉज इंफॉर्मेशन ब्रिंग्स नॉलेज इन wait a minute,
Let me erase this. Yes. Information. It brings what? It brings knowledge. Right? And knowledge brings what? Power. Knowledge empowers the citizens. Knowledge empowers the citizenry. It empowers the citizens. Yes or no? इसका आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं. यू कैन गिव एन एग्जाम्पल फॉर दिस एज वेल. राइट? क्या एग्जाम्पल देंगे? यू कैन गिव टू एग्जाम्पल्स. वन इज MKSS, मजदूर किसान सशक्त संगठन. ठीक है, कल भी बताया था इसके बारे में. और एक और NGO है, इसका नाम क्या है? परिवर्तन. यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ दीज टू NGOs. हाउ? बिकॉज RTI क्या कर रहा है? RTI has increased the say. RTI has increased the say of these civil societies. Civil societies in the governance. Civil societies like NGOs in the governance. Yes or no? Hence, like you can give an example then, like MKSS, परिवर्तन. Basically ये दो NGOs हैं, ठीक है, जो कि RTI के लिए बहुत ज़्यादा काम करती हैं, बहुत आगे एनहेंस होकर बोलते हैं, बहुत फेवर करती है RTI और सिटीजन चार्टर को भी. RTI प्लस सिटीजन चार्टर्स बोथ. सिटीजन चार्टर के बारे में भी बाद में बात करेंगे अभी. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना, बट आज RTI ही है. यस, तो ये इंफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिखती है इनकी. यस, तो इट्स एम्पावर द सिटीजनरी. राइट? ओके. सो इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ट्रांसपेरेंसी, देन RTI. सी, आज का जो टॉपिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट द बेसिक्स, लाइक कि बेसिस क्या है हमारी, जो स्ट्रक्चर क्या रहेगा आज का. थोड़ा RTI के बारे में पढ़ेंगे. देन वी विल ऑल्सो सी OSA, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट. ठीक है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे. देन वी विल सी द RTI की अमेंडमेंट्स. RTI में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, there have been two significant amendments in RTI. One was in 2019, जहां पर CIC की पावर कम करी गई थी. बेसिकली क्या पावर थी वो देखेंगे. सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हटाया गया था, राइट? बट स्टिल वी विल लुक इनटू इट. एंड द रीसेंट वन इन 2025, जो कि एज सच RTI के अंदर अमेंडमेंट नहीं है, बट एक एक्ट है, DPDP बोलते हैं इसको, उसके अंदर एक अमेंडमेंट करी गई है, जिससे RTI के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है. RTI के एक पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, जो कि बहुत न्यूज़ में भी था. वी विल सी. बहुत ईजी है, डोंट वरी, बट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है. वी विल लुक इनटू दीज थिंग्स. ठीक है, ये रहेगा. और इसके साथ साथ बाकी सारी चीज़ें डेफिनेटली देखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ RTI. ठीक है, इश्यूज, मतलब व्हाट आर द चैलेंजेस दैट RTI फेसेस एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड. राइट? दिस विल बी द thing that we'll be covering in today's lecture, right? Okay, so let's start with today's lecture. Yes. Okay. Yes. In 1987, right? In 1987, a few laborers in Rajasthan were refused their wages on charges of inconsistent performance. मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS, an activist group, fought for these workers and demanded that the government produce the necessary proof to verify the workers' performance records. After a series of protests, the MKSS got the copies of rolls, which also brought to surface the corruption that existed among the officials. Right? Provoked by such discrepancies, the MKSS protested for the RTI.
This protest turned into a national event leading to the passing of the Freedom of Information Act 2002, which became the RTI Act of 2005. This is basically historical, आपको रेफरेंस दिया हुआ है कि RTI Act 2005 में आया था, वो आया किस बेसिस पे था। तो जब भी RTI की बात आएगी तो MKSS की बात आती है, बिकॉज ये सबसे बड़ा रीजन था, ये इनकी वजह से ही कहीं ना कहीं RTI Act आया है। ठीक है, इन्होंने कुछ, ये बहुत एक्टिवली, अभी भी एक्टिवली बहुत पार्टिसिपेट करते हैं RTI के लिए, राइट। इन्होंने उस टाइम भी एक करप्शन स्कैम को एक्सपोज किया था। उस टाइम पे RTI एक्ट नहीं थी, उस टाइम क्या थी, इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत एक वीक एक्ट थी, बट स्टिल इनके वर्क की वजह से, ठीक है, MKSS के एफर्ट की वजह से वो करप्शन स्कैम बाहर आ पाया था, एंड अल्टीमेटली दे डिमांडेड फॉर RTI, और उसकी वजह से RTI भी अल्टीमेटली, RTI एक्ट वाज पास्ड इन 2005। ठीक, सिंपल, अपने को सिर्फ इतना ही जानना है यहाँ से, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, the RTI Act is the path-breaking legislation which marks the end of the culture of secrecy and the dawn of transparency. ठीक है, the main features of RTI Act are as under. It, मतलब RTI की सिंपल सी बात है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहा है और सीक्रेसी को कम कर रहा है, यस और नो, ठीक है। अब आते हैं मेन फीचर्स के ऊपर। एनी पर्सन, ठीक है, एक बार एक्ट को थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है, एक बार एक्ट को थोड़ा एक बार एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है, इट विल हेल्प यू आउट डेफिनेटली। एनी पर्सन कैन रिक्वेस्ट एनी इंफॉर्मेशन थ्रू अ रिक्वेस्ट इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, राइट, in English or Hindi or in the official language of the area in which the application is being made along with fee. ठीक है, 10 rupees fee is exempt for certain categories of applicants. ठीक है, सिंपल सी बात है, 10 रुपये चार्ज लगता है, इनफैक्ट वो भी कई जगह वेव ऑफ हो जाता है कुछ कंडीशंस में, और ऊपर से आप किसी भी लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी और अपनी मदर टंग और जो भी लोकल लैंग्वेज है, किसी में भी, इट्स अप टू यू, राइट। कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में भी कर सकते हो, ठीक है, और आप राइटिंग में भी दे सकते हो जाके थ्रू लेटर और समथिंग, और ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो RTI के लिए। आई वुड सजेस्ट कि डेफिनेटली एक बार आपको, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पंजाब PCS, तो इट्स डेफिनेटली यू शुड फाइल एन RTI वंस। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, इंटरव्यू में भी हेल्प होगी आपकी, वहाँ पर भी आपको बताने को हो सकती चीज़ें, ठीक है। कईयों ने तो हॉबी लिख रखी है कि हाँ भैया हमारी हॉबी क्या है, गवर्नमेंट के पोर्टल्स बार बार सर्च करना, ठीक है, उनको एक्सेस करना, RTI फाइल करना, ठीक, खैर चलो। देन an applicant making request for information shall not be required to give any reason for requesting the information or any other personal details except those that may be necessary for contacting. yes, आपने RTI फाइल करी, आपको दिखेगा वहाँ पर कोई रीज़न नहीं देना होता, सिर्फ डिपार्टमेंट का नेम, अथॉरिटी का नेम आपको सर्च करके अप्रोप्रिएट जो अथॉरिटी है वो चूज़ करनी होती है, फीस भरनी होती है और अपना क्वेश्चन लिखना होता है, दैट्स इट, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए बेसिकली, एंड दैट्स इट। सी, अब यहाँ पर ये चीज़ है, पब्लिक अथॉरिटीज़। सी, अब यहाँ पर एक्सप्लेन तो मैं करूंगा पब्लिक अथॉरिटी क्या है, बट ये एक इशू भी है, लूप होल भी है रादर, कि इसको थोड़ा सा ना सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर रखा, इसका मिसयूज भी करा जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट में भी इनफैक्ट आज तक कभी क्लियर नहीं कर पाया अभी तक कहीं पर भी कि पब्लिक अथॉरिटी के अंडर एक्चुअली कौन कौन आता है और कौन कौन नहीं आता, ठीक है। दैट इज द रीजन इसका मिसयूज भी किया जाता है, बट लेट्स सी। पब्लिक अथॉरिटीज अंडर RTI एक्ट, जब देखो RTI फाइल करोगे, पब्लिक अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर रहे हो, यू आर फाइलिंग एन RTI अगेंस्ट एन अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी, तो उस अथॉरिटी में कौन कौन आता है वो बता रहे हैं यहाँ पर। सो पब्लिक अथॉरिटीज इंक्लूड बॉडीज ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर एनी लॉ और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। फॉर इंस्टेंस दीज इंक्लूड मिनिस्ट्रीज, public sector undertakings, PSUs, and regulators. It also includes entities owned, controlled, or substantially financed, and non-government organizations substantially financed directly or indirectly by funds provided by the government. Although यहाँ पे लिख लिया, but there are certain exemptions in that, which are very well misused. ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये, जो भी अगर गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है, कोई मिनिस्ट्री है, कोई डिपार्टमेंट है, अगर गवर्नमेंट किसी को फंड कर रही है, वो सारे के सारे किस में आएंगे, पब्लिक अथॉरिटी में आएंगे। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी जो है वो पब्लिक अथॉरिटी में आएगा, तो इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग नहीं है कि भैया नहीं आता, उनके अकॉर्डिंग नहीं आता। पहली चीज़ यहीं पर क्लियर हो जाती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट के अंदर भी काफ़ी इसमें एक्सेप्शंस आ जाती हैं, तो इसका मिसयूज किया जाता है रादर, ठीक है, खैर। देन
पब्लिक सेंट्रल और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर PIO, ठीक है, पब्लिक सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंड स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर PIOs, as the case may be, on receipt of a request shall provide information as expeditiously as possible and in any case within 30 days of the receipt of the request. PIO जो होते हैं, ठीक है, जिनसे इंफॉर्मेशन, एक ऐसे पोस्ट है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे आपको अंडर RTI, yes or no, or within 30 days that person has to provide you the information. If the information sought for concerns the life or liberty of a person, the same shall be provided within 48 hours of the receipt of the request. अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे लाइफ और डेथ का क्वेश्चन उठता है किसी बंदे का, तो उस केस में 48 आवर्स के अंदर आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी. नॉर्मली 30 डेज के अंदर अंदर PIO को आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू RTI एक्ट ऑफ 2005. ठीक है. PIO हैज विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, ठीक है, रिफ्यूज टू रिसीव एन एप्लीकेशन और हैज नॉट फर्निश इंफॉर्मेशन विद इन द टाइम specified or malafidely denied the request for information or knowingly given incorrect, incomplete or misleading information or destroyed information, it shall impose a penalty of 250 rupees each day till information is furnished. However, the total amount of such penalty shall not exceed 25,000 rupees. ये क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो PIO नहीं कर पा रहा, कि वो जो 30 डेज की लिमिट है उसके अंडर आप तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाई, तो उस केस में क्या होगा, उस पर पेनल्टी लगेगी और पेनल्टी के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन सीकर है हु इज आस्किंग फॉर दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन विल गेट 250 रुपीज पर डे एज अ पेनल्टी. ठीक है, उनको उसकी इम्बर्समेंट के बदले में हर दिन 250 रुपये उनके अकाउंट में डालते रहेंगे. और बट इस पर भी एक लिमिट है, 25,000 इज द मैक्सिमम लिमिट. ठीक है, तो देख रहे हो लूप होल्स का कैसे यूज किया जा रहा होता है. खैर, ठीक. देन now in case of a conflict between RTI and Official Secret Acts of 1923, अब यहां पर देखो ये सबसे बड़ा चैलेंज है. लाइक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट RTI का दुश्मन टाइप है, ठीक है, उसके एंटी ही है एक तरीके से, उसका सबसे ज्यादा मिसयूज होता है. तो जब ऐसा कोई कंफ्लिक्ट है, जब RTI एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, सी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या कहता है कि जो सीक्रेट नेशनल इंटरेस्ट के फेवर में है, ये ब्रिटिश कॉलोनियल एरा की एक्ट है बाय द वे. इसके अंडर अगर कोई ऐसा सीक्रेट है जो कि रिवील करने से नेशनल सिक्योरिटी को हिंडर कर सकता है, तो वो रिवील नहीं किया जाएगा. और RTI आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है कि हर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाए, तो इनके अंदर क्या रहता है, कंफ्लिक्ट रहता है. तो जब भी ऐसा कोई कंफ्लिक्ट हो, देन पब्लिक अथॉरिटी में अलाउ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इफ पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोजर आउटवेट्स द हार्म टू प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट. कि भैया अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, the provision of this act shall have effect notwithstanding anything contained in any other law or any instrument having effect by virtue of any law other than this act. ये क्या कह रहा है कि अगर कोई ऐसा कंफ्लिक्ट आ रहा है, ठीक है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और RTI में, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या कहता है कि अगर कोई ऐसा इंटरेस्ट है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाती है, तो उसको डिस्क्लोज नहीं करना. और RTI क्या कहता है कि भैया सारा आपको डिस्क्लोज करना है. लेकिन एक सेक्शन है जो ये कहता है कि RTI के अंडर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स का मेंशन है वहां पर कि जब भी ऐसा कोई कंफ्लिक्ट आए तो OSA को आपको क्या करना है, वो पावर देनी है. ठीक है, OSO विल विन. बट व्हाट इज सेड ओवर हियर कि इफ देयर इज एनी इंफॉर्मेशन व्हिच डिस्क्लोजर आउटवेट्स द हार्म टू प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, राइट, कि अगर वो इंफॉर्मेशन रिवील ना करी जा रही हो तो उससे जो है कॉमन पीपल का नुकसान हो रहा है, डेमोक्रेसी का नुकसान हो, तो उस केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को पीछे रखना है और RTI को आगे रखना है, और वो आपको रिवील करनी ही करनी है, उसको आप हाइड करके नहीं रख सकते. ठीक है, इनफैक्ट अभी जो 2025 के अंदर अमेंडमेंट आया है, राइट, वो इसी के ऊपर आया है, उसने इसी को आउटवे करा है, इस वाले क्लोज को हटा दिया, एक तरीके से ओवर पावर कर लिया कि भैया कोई भी ऐसी बात हो, जब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात आएगी या कोई भी बात हो, अगर वो पब्लिक वेलफेयर के फेवर में भी है तो आपको रिवील नहीं करनी. ठीक है, आई विल रिपीट. ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए. यहां पर क्या बात हो रही है कि अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इज देयर इफ देयर इज एज इन इंफॉर्मेशन जो कि नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रही हो, नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रही हो, तो उसको आपको रिवील नहीं करना.
समझ आई बात? यस। बट अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट एज सच ना जाके कॉमन इंटरेस्ट जो है उसको फेवर कर रही हो, तो उस केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी कुछ नहीं कर पाएगी। आरटीआई के अंडर आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वही यहां पर लिखा हुआ है। प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट का मतलब है गवर्नमेंट के अपने इंटरेस्ट नहीं देखने, आपको देखना है कि अगर वो लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है, लोगों को फायदा है उस इंफॉर्मेशन में, तो आपको डेफिनेटली वो इंफॉर्मेशन रिवील करनी है। ठीक है। ऑल्दो ये बहुत एम्बिगुअस है, ठीक है, बहुत एम्बिगुअस है क्योंकि क्लियरली डिफाइन नहीं किया हुआ कहीं पर, इसीलिए इसका मिसयूज होता है। राइट, ओके। Any information relating to any occurrence, event or matter which has taken place, occurred or happened 20 years before the date on which any request is made shall be provided to any person making a request. अगर 20 साल तक भी पहले कोई ऐसी हुआ है, ठीक है, 20 साल पहले तक की भी इंफॉर्मेशन आप आरटीआई के थ्रू रिसीव कर सकते हैं। यहां पर यही लिखा हुआ है। ठीक है। Then certain categories of organizations have been exempted from the provisions of the act like intelligence and security organizations. See, आगे पहले exemptions, intelligence and security organizations ये क्या है? Exempted है definitely, ठीक है, because they are working in the interest. अगर वो डाटा रिवील कर देंगे तो बहुत हार्मफुल हो सकती हैं चीजें, तो they have been obviously exempted. ठीक है, चलो then let's see the exemptions. ठीक है, exempted कौन कौन है आरटीआई से? So first, information disclosure of which would prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific or economic interest of the state, relation with foreign state or lead to incitement of any offense. Right? जब भी सिक्योरिटी की बात आएगी, नेशन की सोवरेनिटी की बात आएगी, राइट, वहां पर क्या है, इंफॉर्मेशन वो रिवील नहीं करनी। इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात आएगी, ठीक है, फॉरेन रिलेशंस की बात आ जाए, वो वाली इंफॉर्मेशन आप रिवील नहीं कर सकते। यस, तो ये एग्जेम्प्टेड है बेसिकली। देन इंफॉर्मेशन विच हैव बीन एक्सप्रेसिवली फॉरबिडन टू बी पब्लिश्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ और ट्रिब्यूनल और द डिस्क्लोजर ऑफ विच में कंस्टिट्यूट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करे, ठीक है, तो वो भी क्या आप रिवील नहीं कर सकते। ठीक है। देन इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड कॉज द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, जहां पर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो, ठीक है, स्टेट का या सेंटर पार्लियामेंट का, वो भी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करनी। देन इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट, द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड हार्म द कंपेटिटिव पोजीशन ऑफ अ थर्ड पार्टी। ठीक है, तो वहां वो वाले भी आपको रिवील नहीं करने। ठीक है, जहां पर क्या है आपका ट्रेड सीक्रेट या फिर इंटेलेक्चुअल आपकी प्रॉपर्टी की बात आ जाए, ठीक है, आईपीआर के राइट्स वगैरह, तो बेसिकली वो भी आप रिवील नहीं करने। ठीक है, द कंपिटेंट अथॉरिटी सेटिस्फाइड दैट लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट वारंट्स द डिस्क्लोजर ऑफ सच इंफॉर्मेशन। ओके, ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लेना, नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि आपको एक चीज याद होनी चाहिए मेंस के लिए। ठीक है, जो भी आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिले आप ले सकते हैं, रेस्ट यू कैन काइंडली इग्नोर, बट एक बार जरूर प्रोवाइड करना था, तो आई हैव डन दैट। देन what all is exempted? Information available to a person in his fiduciary relationship unless the competent authority satisfied that the larger public interest warrants the disclosure of such information. Again वही वाली बात आ गई, नेशनल इंटरेस्ट वाली बात आ गई, फिड्यूशरी रिलेशनशिप्स, कि जहां पर ऐसे रिलेशनशिप्स खराब हो रहे, सेंटर स्टेट के या फिर आपस में किसी मतलब क्या नाम है, दूसरी कंट्रीज के साथ हो रहे, तो ऐसे आप रिवील नहीं करने अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा नेसेसरी है। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, राइट, किसी और गवर्नमेंट से अगर आपको कुछ मिले इन्फॉर्मेशन, वो आप एग्जेम्प्टेड है आरटीआई से। इंफॉर्मेशन विच वुड इम्पीड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एप्रीहेंशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर्स। ठीक है, अगर कोई केस चल रहा है और ऐसा कोई डाटा बाहर रिवील हो जाए, उससे अगर उस केस में काफ़ी सारी चीज़ें हिंडर हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, इंपॉर्टेंट है कि वो सीक्रेट रहें, ठीक है, बाहर नहीं आनी चाहिए। उस केस में आप आरटीआई फाइल नहीं कर सकते वहाँ पर, राइट, एग्जेम्प्टेड है। Cabinet papers including records of deliberations of the councils of ministers, secretaries and other officers, right? कैबिनेट के अंदर की बात है, जो कैबिनेट मीटिंग में जो बात चल रही है, मिनट्स चल रहे हैं, जो आपस में वहाँ के जो पेपर्स हैं, वहाँ के जो डिटेल्स हैं, वो भी बाहर रिवील नहीं करनी, वो सीक्रेट रहेंगी। देन इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इंफॉर्मेशन,
the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual, unless the central public information officer of the or the state public information officer or the appellate authority, as the case may be, satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information. अब यहां पर क्या बात हुई है, किसी भी पब्लिक ऑफिशियल की प्राइवेट बातें, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करी जा सकती, वो सील्ड रहेगी, वो सीक्रेट रहेगी, अनटिल एंड अनलेस कि उनकी वो वाली इंफॉर्मेशन भी, पर्सनल इंफॉर्मेशन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं पर इंपॉर्टेंट है, एपीलेट अथॉरिटी में कहीं पर इंपॉर्टेंट, तभी, वरना मना कर सकते हैं आपको सीधा सीधा कि भैया हम नहीं दे सकते आपको, बिकॉज दे हैव बीन एक्सेम्प्टेड. ठीक. देन नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट. राइट. सी एज पर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, बेसिकली ब्रिटिश एरा के टाइम की एक्ट है ये. उस टाइम में ब्रिटिशर्स करते थे भाई किसी को भी अपनी मतलब इसके अकॉर्डिंग उनका जो उनको लगे कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है वो डाटा हम रिवील नहीं करेंगे, आपको मना कर सकते थे. वो ये तब की है, ब्रिटिश कॉलोनियल एरा की है ये. इट वॉज इनेक्टेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा. राइट. It governs all the matters of secrecy and confidentiality in governance. The law largely deals with matters of security and provides a framework for dealing with espionage, sedition, and other assaults on the unity and integrity of the nation. Yes or no? ठीक है. However, given the colonial climate of mistrust of people and the primacy of public officials in dealing with the citizens, OSA created a culture of secrecy. Confidentiality became the norm and disclosure the एक्सेप्शन. ये लाइन जरूर यूज करना जब भी क्वेश्चन में आप लिख रहे हो कि भैया ओएसए का हार्मफुल इफेक्ट्स, ठीक है, मिसयूज वहां पे बात करनी हो, तो होता क्या बेसिकली, ओएसए था कि भैया सीक्रेट चीजों को रखने के लिए, कुछ चीजों को सीक्रेट रखने के लिए, बट अपोजिट हुआ कि सीक्रेसी नॉर्म बन गया और डिस्क्लोजर एक्सेप्शन टाइप बन गया. हर चीज को नकार दिया जाता था कि भैया हम रिवील नहीं कर सकते, नेशनल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है ये, ठीक है, ये वाला डाटा. ठीक. As per section 5 of OSA, any person having information about a prohibited place or such information which may help an enemy state or which has been entrusted to him in confidence or which he has obtained owing to his official position commits an offense if he or she communicates it to an unauthorized person, uses it in a manner prejudicial to the interest of the state, retains it when he or she has no right to fail to take reasonable care of this information. बेसिकली ये क्या कहा गया है कि कोई भी पब्लिक ऑफिशियल कोई इस तरह का डाटा भी बाहर रिवील नहीं कर सकता, उसको अलाउड नहीं है. अगर वो करेगा तो देयर विल बी स्ट्रिक्ट एक्शंस टेकन अगेंस्ट हिम. ही हैज टू कन्फाइड इन विद दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, ही हैज टू मेंटेन दैट सीक्रेसी. ठीक है. अनऑथराइज्ड वे में नहीं करना किसी को भी, ये भी बात बोली गई है. ठीक है. ऑल इन ऑल व्हाट यू नीड टू नो कि नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, सॉवरेनिटी की जब बात आती है तो वो वाला डाटा रिवील नहीं कर सकते, वो वाला आपको गवर्नमेंट आपको रिफ्यूज कर सकती है, रादर पब्लिक अथॉरिटी आपको वो वाला डाटा रिवील करने के लिए मना कर सकती है, बिकॉज अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट दे हैव बीन गिवन दैट पावर. ओके. द वर्ड सीक्रेट और द फ्रेज ऑफिशियल सीक्रेट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द एक्ट. देयरफॉर पब्लिक सर्वेंट्स एंजॉय द डिस्क्रेशन टू क्लासिफाई एनीथिंग एज सीक्रेट. ये जो वर्ड है सीक्रेट, राइट, ये वर्ड सीक्रेट डिफाइन ही नहीं है, तो यहां पर अगेन बोल दिया था पब्लिक अथॉरिटी के डिस्क्रेशन के ऊपर आ जाता है, और अगेन इसका क्या होता है, सबसे ज्यादा मिसयूज, जिसलिए ये चर्चा में रहती है और जिसलिए आरटीआई की दुश्मन मानी जाती है. राइट. सिर्फ आरटीआई नहीं है, सी देयर आर अदर एक्ट्स ऑल्सो, ठीक है, विच गोज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ आरटीआई, लाइक द सेक्शन 123 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. It prohibits the giving of evidence derived from unpublished official records relating to affairs of the state except with the permission of head of the department. ठीक है, आप इसका यूज कर सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, जस्ट गो थ्रू इट वंस. देन सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स, आज की डेट में भी इंपॉर्टेंट है ये, अब भी जब ज्वाइन करोगे तब भी आपको ये रूल्स पढ़ाए जाएंगे. इट प्रोहिबिट्स कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट टू एनीवन विदाउट ऑथराइजेशन. यस, विदाउट ऑथराइजेशन यू कैन नॉट कम्युनिकेट any official document in the public. Then एक oath भी ली जाती है by the union minister while assuming office is administered an oath of secrecy. Yes, we know that oath of secrecy, right? I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration
or shall become known to me as the minister for the union except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. This oath of secrecy is against the principle of transparency. Yes, तो ये तीन चीजें भी आप डेफिनेटली मेंशन कर सकते हैं. Okay, so now let's move forward. Okay. नाउ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन. हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना अगेन इसकी, ठीक है, क्योंकि अब मेंस की बात है तो वहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट ऐसे डिटेल्स फाइन डिटेल्स नहीं है. अपने लिए जो डिटेल इंपॉर्टेंट है हम वो देख लेंगे. सो कहाँ से पहली बात तो ये क्रिएट कब हुआ था? आरटी एक्ट के थ्रू ही क्रिएट किया गया था इनको भी, ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं, एज वी ऑल नो, नहीं है बस. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. सो द एक्ट हैज क्रिएटेड टू बॉडीज. RT Act has created two bodies, Central Information Commission and State Information Commission. क्या इंश्योर करती हैं ये दो bodies? It shall be the duty of this CIC or SIC, as the case may be, to receive and inquire into a complaint from any person who has been refused access to any information requested under this act or who has not been given a response to a request for information or access to information within the time limit specified under this act. अगर को आप RTI फाइल करते हो और आपको जो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट दी गई थी उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन अगर नहीं प्रोवाइड करी गई तो उस केस में वो फाइन तो भरना ही पड़ेगा अथॉरिटी को. साथ साथ आप ये जो बॉडी जो क्रिएट करी गई अंडर RTI, यू कैन फाइल अ कंप्लेंट टू दिस पर्टिकुलर अथॉरिटी एंड दे विल टेक द रिक्वायर्ड एक्शन. दे विल इंश्योर कि आपको इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिली, उस पर एक्शन लिया जाएगा बाय दिस पर्टिकुलर बॉडी. CIC कब एक्ट करेगी? जब आपने किसी सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट RTI फाइल करी होगी और नहीं मिली होगी आपको इन्फॉर्मेशन. SIC कब करेगी? जब आपने किसी स्टेट पब्लिक अथॉरिटी अगेंस्ट RTI फाइल करी और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करी गई, उस टाइम पे SIC विल कम इनटू एक्शन, राइट. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ दीज टू बॉडीज. ओके, अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा बेसिकली यहाँ पर? सी, ये जो अमेंडमेंट करी गई थी इन 2019, यहाँ पे जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड करा गया था बेसिकली उसको अमेंड कर दिया गया था. इट वॉज डन अवे विद. सी द RTI amendment 2019 has made following changes. The amended act give powers to the central government to fix the salary which could be lower, ठीक है, given that the information commission is a statutory body unlike the election commission which is a constitutional body. However, the current incumbent salary will not be affected by the amendment. बेसिकली क्या है, अमेंड करा गया. यहाँ पर अब सैलरी कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि नहीं होनी चाहिए डिसाइड, फिक्स होनी चाहिए, ठीक है. बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा तो दे कैन लोअर इट ऑल्सो, चेंज करी जा सकती है. खैर, द अमेंडेड एक्ट गिव्स द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड द टर्म एज वेल एज द सैलरी ऑफ SCIC एंड SIC टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट. तो पावर ऑफ उनका टेन्योर पहले क्या था? फिक्स था स्टार्टिंग में 5 years और 65, ठीक है, जो पहले आ जाए वो क्या था? फिक्स था. बट अब क्या कर दिया? उसको फिक्स ना करके नाउ इट हैज बीन डन अवे विद. सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है, स्टेट वाले की भी और सेंट्रल की, दोनों की सेंट्रल गवर्नमेंट ही फिक्स कर रही है, सैलरी भी, उनका टेन्योर भी, ईच एंड एवरीथिंग, राइट. तो क्या करा गया? उनकी पावर को डिवॉल्व, डाइल्यूट किया गया बेसिकली. व्हाट इज दिस अमेंडमेंट हैज डाइल्यूटेड द पावर ऑफ CIC and SIC. बेसिकली दे आर diluting the power of RTI itself. RTI की पावर को ही क्या कर रहे हैं? डाइल्यूट कर रहे हैं. Yes or no? The new act gives the central government the power to fix tenures. If the tenure of the CIC and are to be fixed by the center, it follows that their removal from office is also dependent on the center. Yes, obviously, वही तो important यहाँ पर flow है यहाँ पर, right? Okay. Then importance of RTI. Now let's see the importance of RTI. ठीक है, अमेंडमेंट्स देख ली हमने, राइट. ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट देख लिया, थोड़ी इंपॉर्टेंस देख ली जाए, ठीक है, आपके काम आएंगे लिखने के लिए. फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी. यस, डेफिनेटली RTI का मेन एम ही है ट्रांसपेरेंसी. और ट्रांसपेरेंसी क्या इंपॉर्टेंस होती है हम ऑलरेडी देख चुके हैं. सो RTI हैज एंश्योर्ड दैट द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन
regarding government activities, rules and regulations are available with the public. Yes, it strengthen the governance. Yes or no? वो साइकिल पूरी आप लिख सकते हैं अब. आई होप कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, फेथ आएगा, ट्रस्ट आएगा, उससे क्या होगा, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट गवर्नेंस आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, इट विल प्रमोट द इकोनॉमी एज वेल, राइट. गुड गवर्नेंस आएगी बेसिकली. गुड गवर्नेंस रिक्वायर्स दैट लॉज एंड देयर इंप्लीमेंटेशन बी ट्रांसपेरेंट, प्रिडिक्टेबल, इक्विटेबल एंड क्रेडिबल. यस, अब तक तो ये वर्ड छप गए होंगे दिमाग में. RTI ensures that violations of laws are identified as well as rectified at the earliest. Right? ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं. It will ensure that the violation of laws are identified. पहली चीज तो ये आइडेंटिफाइड तो होने चाहिए. पहले तो आप आइडेंटिफाई करेंगे, फर्स्ट स्टेप. उसके बाद रेक्टिफिकेशन होगी. जितनी जल्दी आइडेंटिफिकेशन होगी उतनी जल्दी रेक्टिफिकेशन होगी, उतनी जल्दी वो ठीक होंगे. यस, राइट. देन इज अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी एट ईच लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. यस और नो? So RTI has armed citizens with information which has enabled general public to hold public servants accountable for their act of commission or and omission. Accountability, definitely RTI ने क्या accountability बढ़ाई है. Yes, now the officials are more accountable to the citizens. They can be held accountable rather. Yes or no? Because सारी information लोगों के citizens के सामने है, तो उससे क्या they can held the public officials as accountable. Okay. ठीक है. इफ आपको कोई भी इशू आएगा लेक्चर के बीच में, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. डू लेट मी नो. ठीक है. और अगर लेक्चर सही लग रहे हैं देन प्लीज डू गिव्स अ थम्स अप. इट रियली गिव्स अ मोटिवेशन टू ब्रिंग ऑन दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव फॉर यू. देन मिनिमाइजेशन ऑफ अनफेटर्ड डिस्क्रेशन. डिस्क्रेशन को कम करेगा. डिस्क्रिप्शन कम करना, डिस्क्रिप्शनरी चीजें कम करना जरूरी है. यस और नो? अपनी मर्जी से कुछ भी करते चले जाएं, कोई फर्क, कोई जा नहीं, कोई पूछ नहीं रहा कुछ, उनको कोई पूछने वाला ही ना हो. पब्लिक अथॉरिटीज को जो जी करे कर रहे हो, तो क्या चीजें सही चलेंगी? नहीं. उनकी जवाबदेही बनती है. दे शुड नो दैट सिटीजन कैन आस्क देम क्वेश्चंस, कैन फेच द इंफॉर्मेशन व्हेनेवर दे वांट. दे कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल. तो वो कब होगा? आरटीआई की वजह से ही हुआ है. सो आरटीआई हैज एनेबल्ड पीपल टू सीक इन जस्टिफिकेशन from the power holder regarding their conduct and decisions in public service. This has reduced the discretionary power that is enjoyed by the officials, and the rule of law has been strengthened by the RTI. Yes or no? Rule of law को भी क्या करा है? Strength मिलती है RTI की वजह से. It has strengthened it. Then citizen centricity in decision and action. अब citizen participation होएगी, yes, decision making के अंदर, because RTI के आने से उनसे इंफॉर्मेशन सीख कर जा रहे हैं. दे आर ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग नाउ. सो द आरटीआई हैज ब्रॉट सिटीजंस टू द सेंटर ऑफ एवरी एक्शन, एज नाउ ऑफिशियल्स कैन नॉट टेक एनी रैंडम डिसीजन. यस, द डिसीजंस हैव टू बी ऑब्जेक्टिव सो दैट इट कैन बी डिफेंडेड इन फ्यूचर बाय द डिसीजन मेकर बिफोर द पब्लिक. यस और नो? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. आई होप समझ आ गया होगा. ठीक है. देन करप्शन रिड्यूस करेगा. यस, इट विल हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ करप्शन. देखा है वहीं पर. ठीक है. काफी सारे स्कैम्स इसकी वजह से बाहर निकल के आए आरटीआई की वजह से. आरटीआई की वजह से. यस, लाइक 2G स्कैम, अदर सोसाइटी स्कैम, ये सब आरटीआई की वजह से, आरटीआई की वजह से ही हुआ है. कॉमनवेल्थ गेम्स वाला जो स्कैम है, ठीक है, वहां पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी स्कैम एटसेट्रा, ऑल दीज वर डिटेक्टेड बिकॉज ऑफ आरटीआई एप्लीकेंट्स ओनली, आरटीआई एप्लीकेशंस ओनली. राइट. सो दस इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग करप्शन एज वेल. Yes or no? ठीक है. Now, और it helps in improving the government and the public relations. ठीक है. The information has helped public to understand genuine difficulties that government suffers. It has built trust in the public regarding functioning of the government. Yes, trust build करेगा ये. ठीक है. गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के अंदर जब भी गवर्नमेंट अगर अलाउ कर रही है, हाँ भाई देख लीजिए कोई चक्कर नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर देते हैं, तो इससे एक फेथ वाला फैक्टर बिल्ड होता है. यस और नो? तो गवर्नमेंट और पब्लिक के रिलेशंस अच्छे होते हैं इससे. देन क्योंकि वो फेयर दिखते हैं हमेशा. ये नॉर्मल हमारे रिलेशनशिप में भी होता है कि जब चीज़ें ज़्यादा छुपा के रखें, आप हिडन रखें, तो वो रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है. इंप्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विस. ये सर्विस डिलीवरी इफेक्ट अच्छी हो रही है इससे. थ्रू आरटीआई a person can ask why he has been denied a service or why the services are delayed. This has strengthened the grievance redressal system. ठीक है. आपके grievances जो हैं वो अच्छे से सुने जा सकते हैं इसकी वजह से,
and improved the quality of service delivery in the government offices. सर्विस डिलीवरी की क्वालिटी भी इंप्रूव होएगी, डेफिनेटली होएगी, राइट? ठीक है, चलो आगे. यस, नाउ वी हैव कम टू द इश्यूज दैट यू फेस इन आरटीआई. आरटीआई के साथ जो इश्यूज फेस करे गए हैं, ठीक है? ओके, सी लास्ट में ना अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है 2025 वाला, उसको भी जरूर देखेंगे. लेट्स कवर दिस इशू फर्स्ट, इश्यूज इन द आरटीआई, एंड देन वी विल डील विद द अमेंडमेंट्स. ठीक है, अमेंडमेंट के साथ फिर डील करेंगे. बहुत छोटा सा टॉपिक है वो भी, ठीक. चलो, यस, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन. ठीक है, नाउ इश्यूज विद द आरटीआई इज द फर्स्ट वन इज द विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन. ठीक, आरटीआई एक्ट डज नॉट अफोर्ड प्रोटेक्शन टू विसल ब्लोअर्स. ये इंपॉर्टेंट है, ये मिस यहाँ पे लूप होल है, मिसिंग है ये चीज़ कि जो विसल ब्लोअर्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए. हमने कितने सारे अटैक्स सुन लिए, इन पे मर्डर, इन पे अटैक्स होते हैं, कितनी हमने किलिंग्स भी देखी हैं. दो चार मैं आपके सामने लेके भी आया हूँ. देयर इज अ लैक ऑफ प्रोविजन टू गिव प्रोटेक्शन टू विसल ब्लोअर्स बाय मेंटेनिंग देयर प्राइवेसी. यस, more than 300 instances of attacks on or harassment of citizens and at least 51 murders and 5 suicides can be linked to information sought under the Right to Information Act. Like for example, you see here, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, संजय दुबे महाराष्ट्र. ठीक है, he filed an RTI regarding illegal construction and PIL in High Court against a politician. He was killed. Then Bhola Shah, Bihar. He exposed financial irregularities in social welfare schemes. He was killed. Rajendra Prasad Singh, Bihar, exposed several corruptions in police recruitment, PDS, toilet schemes, health and education schemes through his RTI applications. Right? There are numerous examples. So they need to be protected under this RTI. तो ये missing है, इस पे ध्यान देना जरूरी है. Then poor record keeping. Most of the old record is not available in digital format. ठीक है, डिजिटाइजेशन की नीड है. दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर रिप्लाईज ऑफ आरटीआई वेयर इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड ससिंक्ट इंफॉर्मेशन, लार्ज अमाउंट ऑफ अननेसेसरी इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड. राइट, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड करके इतना बड़ा डाटा सा प्रोवाइड कर दिया जाता है, सो दैट सामने वाले को इसको क्या बोलते हैं, इन्फेयर करना ही मुश्किल हो जाए. ठीक है, समझना ही मुश्किल हो जाए. द सेकेंड ARC फर्स्ट रिपोर्ट RTI मास्टर की टू गुड गवर्नेंस cites an example. You can definitely quote this. ठीक है, second ARC की first report RTI master key to good governance. When Rakesh Shukla, a poor farmer from the central Indian state of Chhattisgarh, asked local authorities for information on paddy field purchases in his area, he was handed a bill of 1,82,000 rupees. Authorities told him that the bulk of the expenses had been spent photocopying over 90,000 copies of official papers relating to the purchases. डॉक्यूमेंट फिल्ड एन एंटायर रूम. ठीक है, इस तरीके से गवर्नमेंट खेलती है. उसको बोला था, उसको बिल पकड़ा दिए गए, इतने सारे पन्ने पकड़ा दिए गए कि ये लो, आपको डाटा चाहिए था, लो. उसके अंदर सिर्फ उसके बिलिंग के ही चार्जेस थे कि इतना खर्चा आया, उतना खर्चा आया. इतने सारे पेजेस इकट्ठे कर दिए, बंदे के लिए मैनुअली पॉसिबल ही नहीं है कि उसको पढ़ना. ठीक है, देन यस, डिले इन डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी लॉग जैम. यस, आरटीआई की वजह से होता है. ठीक है, ये भी एक इशू है. डिसीजन मेकिंग, जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है, इट विल, उसमें टाइम लगता है, वो टाइम ज़्यादा ले सकते हैं, डिले हो सकते हैं उसके अंदर अननेसेसरी. क्रिटिक्स हैव पॉइंटेड आउट दैट आरटीआई हैज हैम्पर्ड डिसीजन मेकिंग एक्सरसाइज. Decision taking in good faith may result in undesirable consequences. Even if the official inquiry expungates them, the negative public image and lost reputation may never be recovered. Yes, ठीक है, एक बार जो इमेज खराब हो गई, अगर मान लो नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई, तो इमेज खराब हो गई तो हो गई, फिर चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो ट्रस्ट फैक्टर खत्म हो जाता है एंड अननेसेसरीली डिलेज बढ़ते हैं इसकी वजह से. इंट्रूजन इनटू प्राइवेसी. यस, पब्लिक ऑफिशियल्स की प्राइवेसी के अंदर आप इंट्रूजन हो सकता है यहाँ पर. सम ऑफ द इंफॉर्मेशन सॉट अंडर आरटीआई आर इंट्रूसिव इन नेचर एंड कैन वायलेट द प्राइवेसी ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स. यस, on the other hand, some vital and relevant information is denied to public under the excuse of privacy. Yes or no? ठीक है, under the excuse of privacy कुछ information छुपा भी ली जाती है, और अगर कुछ रिवील हो जाए तो वो नुकसान भी पहुंचाती है कईयों की प्राइवेसी को. Yes. Now that Supreme Court has declared privacy as a fundamental right,
द इशू हैज बिकम इवन मोर कॉम्प्लेक्स। राइट टू प्राइवेसी के बाद तो और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। यस डेफिनेटली। लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, many government departments are already short on staff, right? The RTI has put additional compliance burden on them. Given the strict timelines, the government departments are engaged in managing RTI applications rather than doing what they are supposed to do. It is a time consuming exercise and large number of frivolous RTI applications are also putting extra and unnecessary burden on the government. ठीक है, अगर सिटीजन्स भी इतनी सारी आरटीआई जाती हैं, अननेसेसरी आरटीआई भी फाइल करी जाती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे रिसोर्सेज इसके तरफ डाइवर्ट करने पड़ते हैं ना होने के बावजूद भी। ठीक है, रिसोर्स एंड मनी दोनों वेस्ट होते हैं काफ़ी सारे इसकी वजह से गवर्नमेंट के, जो कि कहीं अच्छी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इशू है। ओके, एक इशू और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि द वर्ड है पब्लिक अथॉरिटी, राइट? पब्लिक अथॉरिटी ये क्लियर नहीं है, ये भी आप डेफिनेटली मेंशन कर सकते हैं कि ये क्लियरली मेंशन नहीं है, इसका मिसयूज किया जाता है, ये एक लूप होल है। ठीक है, इसके अंदर एक्सेप्शंस है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। राइट, ओके, यस, yes, then the time limit of 20 years. Information up to 20 years past can be obtained through RTI. Most of the RTI applications are related to land records and property records, and the time limit to 20 years is too less. था ना कि 20 साल तक का ही डाटा ले सकते, इसके बाद का नहीं ले सकते, इससे पहले का, आई मीन सॉरी, 20 साल से पुराना डाटा आप नहीं RTI के अंदर मांग सकते। तो ये भी एक लिमिट है, ये भी एक इशू है इसके साथ कि ये लिमिट बढ़नी चाहिए। लाइक लैंड रिकॉर्ड्स तो बहुत पुराने पुराने होते हैं, 50-60 साल के भी होते हैं, वो कहाँ से रिवील करें फिर। देन सिटीजन ओनली, under the act the right to information is available only to the citizens and not to non-citizens, whereas in most countries such distinction is not made, only citizens के लिए provided है, non-citizens के लिए नहीं है ये। right, so ये भी हम mention कर सकते हैं। then exemptions, जो exemptions हैं वो खा जाती हैं RTI को। exemptions like sovereignty and integrity of nation, इसके नाम पे कुछ भी कर सकती है गवर्नमेंट, कुछ भी। relations with the foreign nations etc are very broadly worded। ठीक है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज डिनाइड टू द पब्लिक इन द नेम ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शंस। यस और नो? आई थिंक आई डोंट नीड टू रिपीट दिस थिंग। देन लैक ऑफ अवेयरनेस इन पब्लिक, अभी तक लोगों को आरटीआई के बारे में नहीं पता कि आरटीआई का क्या मतलब होता है, कैसे यूज करते हैं, बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता। ठीक है, although many know the right to information exists, but not even 20% of Indian population know how to exercise this right and how to seek information from the public। ठीक है, आरटीआई फाइल कैसे करनी होती है ये भी नहीं पता होगा अब तक 80% ज़्यादा लोगों को। ठीक है, तो देर इज अ ह्यूज लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग द आरटीआई। देन द पावर ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 2019 इसकी पावर काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दी गई है। सो द पावर ऑफ सीआईसी इज लिमिटेड इन स्कोप एज इट डज नॉट हैव पावर्स टू एनफोर्स इट्स ऑर्डर्स। एनफोर्स करने की बात ही नहीं है, वही कैग वाला इशू है सेम यहाँ पर भी, कि आप कुछ ऑर्डर को एनफोर्स नहीं कर सकते, आप सिर्फ बता सकते हो, आगे एक्शन तो बाकी गवर्नमेंट ही लेगी अल्टीमेटली, या सुप्रीम कोर्ट लेगा। तो CIC in past has ruled that the political parties fall within the definition of public authorities and must disclose their financing details to the public. But this decision was not followed by the political parties. Further, large number of cases are pending before the CIC. In June 2013, about 31,000 appeals were pending and over 90,000 of those pending over a year. Huge pendency of cases also there in front of CIC. Number of बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बनती चली जा रही है। ठीक है, क्यों? लेकिन क्यों? क्योंकि एक्शन तो ले नहीं पा रहे, तो क्या ही कर लेंगे वो। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा लूप होल है CIC के अंदर, पावर ही नहीं है उसके पास कुछ खास। ठीक, देन ओके, so now the RTI Act has been amended. The independence of CIC is further reduced and its ability to take decisions which are against the government of the day has substantially declined. Yes or no? Right? अब और भी ज़्यादा पावर डिक्रीज कर दी गई है इसकी। राइट, ओके, सो नाउ लेट अस सी द सजेशंस। ठीक, ओके, वे फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, लेट अस सी द वे फॉरवर्ड, just before way forward, let us see the recent amendment of 2025.
Okay, so let us see. Yes. See, recently एक अमेंडमेंट करा गया था, ठीक है. एक एक्ट है डीपीडीपी, मतलब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस एक्ट? डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन, ठीक है. 2023 का एक्ट है बाय द वे ये, एंड रिसेंटली 2025 के अंदर इसके अंदर एक अमेंडमेंट करा गया है, अकॉर्डिंग टू विच, राइट, अकॉर्डिंग टू विच नाउ कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ऐसी है, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसको रिवील करने के लिए डिनाई करा जा सकता है. नाउ पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन बी डिनाइड, राइट, इट हैज बीन डिनाइड. क्या था पहले, क्या था फर्स्ट, पहले क्या था कि अगर किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन है, अगर उस पर आरटीआई फाइल हो, उसकी इंफॉर्मेशन की सीक करी जा रही है, तो इट हैज टू गो थ्रू अ टेस्ट, ठीक है, इट हैज टू गो थ्रू अ टेस्ट, राइट, जिसको पब्लिक इंटरेस्ट कहते थे. इट हैज टू गो थ्रू अ पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट. कि व्हाट वाज दैट टेस्ट? कि इफ दैट इंफॉर्मेशन इफ इट इज रिवील्ड, इट इज इन द फेवर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कि अगर वो जो इंफॉर्मेशन है, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के फेवर में है, तो फिर वो इंफॉर्मेशन रिवील करनी पड़ेगी, और पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको रिवील करनी पड़ेगी. बट दिस अमेंडमेंट हैज गॉन अवे विद दिस क्लॉज. ये वाला सेक्शन है, सेक्शन 8I(J), जो आरटीआई एक्ट का है, उसको डायरेक्टली हैम्पर कर रही है. इस एक्ट के अंडर से इस वाले क्लॉज को हटा दिया गया है, विच विल से कि भैया किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को अब आप नहीं रिवील कर सकते, ठीक है. तो सेक्शन 8I ऑफ आरटीआई एक्ट, उसके अकॉर्डिंग ये पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट, वहां पर भी लिखा हुआ है सेम चीज जो है, पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट, इट हैज बीन मेंशन्ड इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन 8I(J), ठीक है. तो उसको ये क्या कर रहा है, बेसिकली ओवर पावर कर रहा है अब. यस, 100 बात की एक बात, इस अमेंडमेंट के थ्रू अब जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी भी बंदे की आप एक्सेस नहीं कर सकते, अगर वो बंदा डिनाई कर दे इसको साफ, किसी प्रोविजन के ऊपर. पहले एक प्रोविजन था कि अगर वो पर्सनल इंफॉर्मेशन रिवील करने से कॉमन इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के फेवर में जा रही है चीज, तो आपको रिवील करनी पड़ेगी. नाउ दैट हैज बीन गॉन अवे विद. यस, तो ये रिसेंट अमेंडमेंट है. इफ एनीथिंग इज आस्क्ड फ्रॉम दिस, यू शुड बी एबल टू नाउ आंसर इट, राइट. ओके, so let's get on with our slide again. Yes, right, now we are going with the suggestions or the way forward. ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं इनको भी, क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ठीक. सो यस, फर्स्ट इज स्ट्रीमलाइन वेरियस लॉज एंड रूल्स. स्ट्रीमलाइन करने चाहिए. सो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट शुड बी रिपील्ड, ठीक है, इसको रिपील करो, एंड शुड बी सब्स्टिट्यूट बाय अ चैप्टर इन द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट. एनएसए के अंदर एक चैप्टर इंक्लूड करो, और एज सच ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स को हटाओ. कंटेनिंग प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑफिशियल सीक्रेट्स, ठीक है, सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल, एंड द एविडेंस एक्ट हैज टू बी ब्रॉट इन लाइन विद द आरटीआई एक्ट. यस, उनको भी करना है, आरटीआई एक्ट की लाइन में लेके आएंगे. द ओथ ऑफ सीक्रेसी कैन बी रिप्लेस्ड बाय ओथ ऑफ ट्रांसपेरेंसी फॉर मिनिस्टर्स व्हेन दे एंटर देयर ऑफिस. All these are what? These are recommendation of second ARC, RTI मास्टर की उसकी फर्स्ट रिपोर्ट, ठीक है, उसके अंदर रिकमेंडेशन है, यूं कि यूं आप लिख सकते हैं, ठीक. चलो आगे बढ़े. यस, देन prune the exemption list. The current exemptions are wide and have to be clarified and sharpened, right. जो exemptions हैं वो clearly listed होनी चाहिए, discretion पे नहीं होनी चाहिए. Blanket exemptions in the RTI like security, intelligence, research and economic institutes deny many important information to the public. Clearly लिखो भाई, clarification होनी चाहिए एकदम. Digitization होनी चाहिए records की, बताया मैंने issues में देखा था. Definitely digitization होनी चाहिए records की. Capacity building of the government organizations, right. See, training programs should not be confined to merely PIOs. All government functionaries should be imparted at least one day training on right to information every year.
ठीक है, ऑफिशियल्स को भी सिखाना चाहिए क्या इंपॉर्टेंस है इसकी आरटीआई की, राइट। ओके, देन पब्लिक के अंदर अवेयरनेस की जरूरत है, सो देयर इज अ नीड फॉर अवेयरनेस जनरेशन इन द पब्लिक, सो देयर शुड बी वाइड स्प्रेड कैंपेन्स होने चाहिए पब्लिक अवेयरनेस के लिए, राइट। देन एनजीओ और सिविल सोसाइटी को भी इंक्लूड करना चाहिए इस एक्सरसाइज के अंदर, दे शुड ऑल्सो डू दिट। अ चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द पीपल इज अ क्रूशियल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन इंडिया। एटीट्यूडनल चेंज लेके आने की जरूरत है बेसिकली, एटीट्यूडनल चेंज किसमें, बोथ सिटीजन्स में भी और पब्लिक ऑफिशियल्स दोनों के अंदर। यस, यहां पर आप अवेयरनेस कैंपेन्स के थ्रू कर सकते हो, और यहां पर आप क्या करोगे, इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग कैंप्स होने चाहिए, इनकी ट्रेनिंग के अंदर इंक्लूड करना है हमें ये। यस, देन विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट इंक्लूड करनी है, इससे लोग विसल ब्लोअर्स जो हैं उनको सेफ्टी मिले, सिक्योरिटी मिले। यस, देन सेंट्रल इंपॉर्टेंट है, सीआईसी शुड बी मेक अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिले, उसको स्ट्रेंथन करने की नीड है, उसको अथॉरिटी देने की नीड है, एक्शन लेने की पावर देनी है उसको। यस, देन रिड्यूस द पेंडेंसीज, ठीक है, करंटली 4 आउट ऑफ द 10 पोजीशंस ऑफ द इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आर वैकेंट, दीज पोजीशन शुड बी फिल्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन कमीशन एक सिंगल बॉडी नहीं होता, उसके अंदर काफी सारे कमीशन होते हैं उनके अंडर, वो वाली वैकेंस पड़ी हैं पोजीशंस। बेसिकली कुल मिला के सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को स्ट्रेंथन करने की नीड है। यस, देन पॉलिटिकल पार्टी शुड बी ब्रॉट अंडर आरटीआई। In 2013, the CIC has declared 6 national political parties at public authority under the RTA Act and ordered them to make voluntary disclosures and respond to information requests. However, all parties refused to comply with the decision. Yes. ठीक है, prompting the petitioners in case to approach the Supreme Court in 2015, which is still hearing the case. Political parties should be expediently brought under RTI to check flow of illicit funds, right? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिख सकते हैं। एन इफेक्टिव फिल्टर मैकेनिज्म, अ लॉट ऑफ फ्रिवलस आरटीआई, ठीक है, एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके अंदर आप जो फ्रिवलस आरटीआईज हैं उनको साइड कर सकें, और जो एक्चुअल प्रॉपर आरटीआईज हैं जो कि सही आरटीआई हैं उनको आप हैंडल कर सकें, एड्रेस कर सकें। देन क्रिएशन ऑफ आरटीआई इंप्लीमेंटेशन सेल, प्रॉपर एक अलग से डिवीजन होनी चाहिए आरटीआई इंप्लीमेंटेशन सेल्स की, जहां पर उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, सारा उस पर ध्यान रखा जा रहा है, right? So these were the way forward suggestions that you can definitely quote in your answers, and this is for today. कल मिलेंगे next topic पे, which will be I think एक important topic. I hope it will be citizen charters, right? But we will see. So we will meet in the next lecture. Till then, goodbye, take care, and I wish you good luck for your future endeavors. Okay, bye bye.